Hello students, today we will discuss about a new topic, that is seed classes. As we know, production of seed is a continuous process and each year a huge quantity of seeds are required to meet the demands of crop production. So let's start the class to know about different classes of seeds. Till some years ago, seeds have following classes: nucleus seed or basic seed. Second one is breeder seed. Third one is foundation seed. Fourth one is registered seed, and the last one is certified seed. So nucleus seed or basic seed, breeder seed, foundation seed, registered seed and certified seed. Foundation seed is also certified and registered seed is not produced. तो ये दोनों खत्म हो गए. अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया, द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सीड इंक्लूड्स, पहला है न्यूक्लियस सीड, सेकेंड breeder seed, and the third one is certified seed. According to modern classification, seeds are divided into three categories: nucleus seed, breeder seed and certified seed. Now we will discuss about nucleus seed. Actually, nucleus seeds are the first seed of a variety available with the producing breeder of the crop. फर्स्ट सीड होते हैं जो कि प्रोड्यूसिंग ब्रीडर जो भी वैरायटी लगाता है उसका जो फर्स्ट सीड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस सीड. दे हैव 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी. 100% genetic and physical purity. Next character is they have high standards of all quality parameter. Next, nucleus seed. Actually, nucleus seed is multiplied and then maintained by selecting इंडिविजुअल पॉड्स हो सकता है या स्पाइक्स हो सकता है या फिर इंडिविजुअल प्लांट हो सकता है. तो सिलेक्शन जो किया जाता है वो किसी इंडिविजुअल पॉड्स, स्पाइक या प्लांट का किया जाता है और फिर इन्हीं इंडिविजुअल पॉड्स, स्पाइक्स या प्लांट्स को क्या कराया जाता है? ग्रो कराया जाता है. तो these are nucleus seed
This process is repeated every year. Repeated every year. And the process is repeated every year. Hence, the nucleus seed is available in small quantities. Small quantity. So that's about nucleus seed. Now, the second one is breeder seed. Actually, the progeny of nucleus seed is called as breeder seed. न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजेनी होती है वही क्या बना लेती है? ब्रीडर सीड बना लेती है. ब्रीडर सीड इज द सोर्स फॉर initial and recurring increase of foundation seed. ब्रीडर सीड सोर्स होता है इनिशियल एंड रिकरिंग इंक्रीज का फाउंडेशन सीड के लिए. होता क्या है कि जो न्यूक्लियस सीड होते हैं इससे जो प्रोजेनी मिलती है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है. मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई कहाँ किया जाता है? इन लार्ज एरिया. इट मे बी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहां पर इसे मल्टीप्लाई किया जाता है. ब्रीडर सीड्स भी 100% फिजिकल एंड जेनेटिक प्योर होते हैं. 100% फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है. ब्रीडर सीड के लिए गोल्डन ब्राउन टैग इशू किया गया है. गोल्डन ब्राउन टैग. Now we will discuss about the third type of seed called as certified seed. So what are certified seed? Certified seeds are those seeds which are certified by Seed Certification Agency. Certified seeds is the seed which is certified by Seed Certification Agency. Notified under Section 8 of the Indian Seed Acts 1966. तो या तो ये होना चाहिए या और क्या हो सकता है? They may be certified by any foreign certification agency. किसी
फॉरेन सर्टिफिकेशन एजेंसी से भी सर्टिफाइड हो सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट एजेंसी इज recognized by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया। तो उसके बाद देखिए इसके लिए किस कलर का टैग है इशू किया गया है। सर्टिफाइड सीड्स के लिए ब्लू टैग इशू किया गया है, और ये जो टैग्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, वो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इशू करती है। हाँ, न्यूक्लियस सीड के लिए किसी भी कलर का टैग नहीं इशू किया गया है। इसके लिए जो प्रोड्यूसिंग ब्रीडर होता है उसे एक सर्टिफिकेट देना होता है, उसके लिए किसी भी कलर का टैग नहीं यूज किया गया है। सर्टिफाइड सीड के लिए ब्लू टैग और ब्रीडर सीड के लिए गोल्डन ब्राउन टैग। Actually, the breeder seed is the commercial seed. Commercial seed क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं ये ही अवेलेबल होते हैं किनको? फार्मर्स को। अब फार्मर से जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वही उसी से क्या होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। That's why certified seeds are also called as certified seed. तो ये था डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड्स के बारे में। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी के बारे में। पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल प्योरिटी क्या होती है। फिजिकल प्योरिटी मीन्स freedom of seed from inert matter। किसी भी प्रकार के inert matter से सीड क्या हो? फ्री हो। और दूसरा, it also free from defective seed। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनर्ट मैटर क्या होता है। इनर्ट मैटर, इट मे बी सैंड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स, स्ट्रॉ और एनी अदर इम्प्योरिटी, बट only 1 to 5% of inert matter is permissible। अगर 5% से ज्यादा इम्प्योरिटी पाई जा रही है, इनर्ट मैटर पाया जा रहा है, तो that seed will not be physically pure। अब डिफेक्टिव सीड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डिफेक्टिव सीड किसे कहते हैं? डिफेक्टिव सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनका एम्ब्रियो डैमेज हो। अगर एम्ब्रियो डैमेज है तो दे विल नॉट जर्मिनेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिफेक्टिव सीड। कभी कभी किसी सीड में कोई डिजीज भी लगा हो सकता है, या इट मे बी इन्फेस्टेड बाय एनी इंसेक्ट। सो डिफेक्टिव सीड, a seed with damaged embryo or it is infested by any disease or insect। ये हो गई फिजिकल प्योरिटी। अब हम देखेंगे जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है। जेनेटिक प्योरिटी देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक प्योरिटी मीन्स होता है सीड्स conforming to the characters
variety as described by the breeder. ब्रीडर ने जो कैरेक्टर बताया, अगर वो कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं ग्रो कराने पर, तो इट मीन्स कि आपका जो सीड है वो कैसा है, जेनेटिकली प्योर है। अब कैसे पता लगेगा, कैसे दिखेगा? जब आप क्रॉप को लगाएंगे तो आपको उसकी कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, दिखाई देंगे। कोई भी हेरिटेबल कैरेक्टर हो सकता है, वो आपको दिखाई देगा। तो अगर सीड्स ऐसे हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, जैसा कि प्रोड्यूसिंग ब्रीडर ने बताया है, तो दैट सीड विल बी जेनेटिकली प्योर। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक सीड क्लासेस, and we will meet again in the next video with a new topic.